ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहीद, हैव यू स्टडीड ऑर्गेनिक पोर्शन इन योर स्कूल? जी सर किए। कहाँ तक? वो एल्काइन एल्कीन उधर तक किया। ओके, एल्केन एंड एल्कीन तक किया। ओके, हम ऑर्गेनिक में जो करेंगे वो हम फार्मूलाए, फंक्शन ग्रुप्स एंड टर्मिनोलॉजीज को करेंगे डिस्कस। उसके बाद फिर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें बाकी फंक्शन ग्रुप्स भी आएंगे। अल्केन्स करेंगे, अल्कीन्स करेंगे, और उसके बाद फिर अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड दैट्स ऑल। ये टॉपिक मैं ऑर्गेनिक में इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके बाद वी विल गो थ्रू दी फ्यूल्स एंड दी पॉलीमराइजेशन। वो मैंने उसको सेपरेट करना है इनसे। आपके स्पेसिफिकेशन के अंदर उन्होंने इसके साथ कंबाइन किया हुआ है, फ्यूल्स को भी किया हुआ है, पॉलीमराइजेशन को भी किया हुआ है, बट आई विल नॉट डिस्कस दैट इन दी सेम चैप्टर। मतलब इसके साथ मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं मर्ज नहीं करूंगा, उसको मैं सेपरेट करूंगा। मतलब कि इनका सबका अलग से टेस्ट होगा, और फ्यूल्स पॉलीमराइजेशन को मैं अलग से सेपरेटली आपसे टेस्ट कंडक्ट करूंगा। तो Excuse me, sir. यस, Sir, when is the test for rate of reaction? द टेस्ट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, it maybe it will be tomorrow. No, it will be on Saturday. Yes, your tests are always taken on Saturday. So I will announce the test if might be today or tomorrow. So be prepared for the test, which will be conducted on this Saturday. But it will also depend upon your practice. If you students have practiced the questions, sufficient number of questions have been practiced by all of you, then you can give the test of the rate of reaction. So have you all attempted some sufficient number of questions? Raise your hands if you have done this. Wait, so you're saying the test is going to be tomorrow? No, not tomorrow, on Saturday. Okay. If you have done sufficient number of questions, then please raise your hands for the rate of reaction. Only 2 hands are raised. Okay, good. Ishan and Hussein, try to practice question, because already 3 students have given the tests, and now there are 2 more students which have to prepare for the tests. Abdullah, Muhammad Abdullah, and Tayyib. Okay, lower down your hands, please. Lower down your hands. Okay, now let's start with the organic chemistry, the hydrocarbons. हमने इसको start किया हुआ था, और मैं इसको थोड़ा सा recall करवा दूंगा हमने क्या कुछ किया था in this topic. We will set how we define the alkanes. The alkanes are such compounds in which there will be only carbon to carbon single bonds along with the carbon hydrogen bonds. There will be carbon carbon single bonds and carbon hydrogen bonds. उनको हम कहते होते हैं alkanes. और alkanes को हम दूसरी कैटेगरी भी कह सकते हैं saturated का hydrocarbons. Saturated hydrocarbons mean all the bonds of the carbon have been bonded with the other elements or with the other group of atoms. उनको हम कहेंगे saturated hydrocarbons. So alkanes are considered as a part of saturated. और दूसरी जो कैटेगरी थी, that was called the unsaturated hydrocarbons, जिसमें हमारे पास होते हैं examples of alkenes and alkynes. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि you have to learn these names to give the names of different compounds. These names indicate the number of carbon atoms in the compound. कितने कार्बन एटम होंगे वो हम इस नाम से याद करते हैं. It will be preferable if you learn all of these names from carbon number 1 to carbon number 6. And these are the names of all the alkanes along with their number of carbon atoms. After that, we studied the some of the suffixes. कौन से suffix हम use करते हैं for different types of the functional groups.
अभी फंक्शनल ग्रुप को हम अलग से डिफाइन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्कीन्स है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सब के लिए हमारे पास जो सफिक्स होते हैं वो यहाँ पे इस टेबल में मेंशन है। अल्केन के लिए वी से ANE, अल्कीन के लिए वी से ENE, अल्कोहल्स के लिए वी से OL, and for carboxylic acid we say oic acid. So we will go through separate examples for all the compounds of the alcohols, carboxylic acids. और इस टेबल में जो है कुछ एग्जांपल्स गिवन है फॉर द एल्कीन्स जिसमें हमारे पास कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 6 है। I have a question here. Why is there no example of alkene which contains only one carbon atom? Because there would be only one carbon and one hydrogen, and carbon needs 4 electrons to be stable. Because we need two carbon atoms. Exactly, we need two carbon atoms to have the carbon-carbon double bond between them. We can only have the smallest member of alkene which can contain carbon-carbon double bond is 2. That's the reason. So if we have carbon-carbon double bond, then it means we can start with a member containing two carbon atoms. So इसलिए there is no Sir, such example. sir, Yes. so there will be no example of alkene for one carbon atom. कार्बन एटम एग्जैक्टली, देयर बी नो सच एग्जांपल। कोई हो ही Okay. नहीं सकती। अल्कीन की तो डेफिनेशन ये थी कि देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड तो आपको नजर आ रहा है वो जब तक दो नहीं होंगे तब तक उन्हें हम शो भी नहीं कर सकते डबल बॉन्ड। अगर एक कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन के लिए तो हम सिंगल बॉन्ड ही शो कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. ओके, नाउ वी आल्सो कवर्ड द एग्जांपल्स ऑफ द एल्कीन्स। और एल्कीन के मैंने आपको कल जो था वो जनरल फॉर्मूला बताया था, दैट इज CnH2n। यहाँ पे N stand for what? Abdullah, Yusufzai, what does N stand for here? Number of carbons. Very good. Number of carbon atoms. And the same N is mentioned along with the hydrogen. That N means it has been multiplied by the 2. So there shall be twice time number of hydrogen atoms as compared to the carbon atoms. Alkenes के लिए general formula होता है. What is the general formula for the alkene? Give me answer, Hussain Abbas. What is general formula for alkane? Sir, CnH2n plus 2. Yes, Hussain, you didn't answer me. मैंने Hussain से पूछा था, Hussain Abbas. Yes, Hussain, are you sir. there? Yes, sir. Okay. So yes, the formula for alkane is CnH2n plus 2. Okay, ये भी हो गया। इसके बाद we have some examples of the alkenes. These are there. Which type of the formulas? ये किस type of formula को represent किया जा रहा है over here? Structure. Okay. सर ये हुसैन अब्बास, फॉर्मूला तो एल्केन का नहीं है। आपने कहा फॉर्मूला है लेकिन कौन सा वाला अब्दुल्ला? एल्केन का। This one, I'm saying this thing. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? This whole thing. किस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है? किस फॉर्मूला को? That is my Sir, question. structural formula. ठीक है, आपने आंसर दे दिया तैयब। एल्कीन को सर। अल्कीन को इथीन को कह रहा है और एल्कीन को भी कह रहा है। ओके, आई शुड बी मोर स्पेसिफिक विच टाइप ऑफ फॉर्मूला इट इज। अब आंसर आपने विच टाइप ऑफ फॉर्मूला इट इज आपने तैयब दे दिया आंसर।
सर डिस्प्ले फार्मूला. Exactly, exactly. That's the displayed formula. Tayyib, it's not structural formula. It is the displayed formula. You are displaying all the bonds here. That is the displayed formula. All the atoms are shown and all the bonds are shown. ये होती है identity of the displayed formula. Sir, what is a structure formula Structural of formula this? will be मैं इसके लिए अब आपको एक टेबल शो करता हूँ, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. What is displayed formula? What is structural formula? Here, this is a table which indicates that this is molecular formula, this is the molecular formula, this is displayed formula, and this is structural formula. If I have C4H10, so C4H10 will become the molecular formula. Display formula will be shown in which all the sequence of the atoms are shown and all the atoms are shown and all the bonds are shown. कैसे वो लिंक हुए हुए हैं. और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? We are omitting all the single bonds between the carbon and hydrogen, also between carbon to carbon. All of the bonds of carbon to carbon and carbon to hydrogen are omitted. इसकी दूसरी भी टाइप हो सकती है जिसमें हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शो कर दें. We can show carbon to carbon bonds like this: CH3 single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3. It is also an example of the structural formula. Is that clear now? Yes, sir. All right. So ये 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं. और एक और हमने अभी भी जो जिक्र किया था, जब मैंने क्वेश्चन भी किया था कि अल्केन का फॉर्मूला बताएं, जनरल फॉर्मूला. So you can also include one more formula here that will be called the general formula. So ये हो गए. कितने टाइप्स के फॉर्मूलाज हो गए? 4. There is one more type of the formula which you will study in A levels. अभी उसको मैं explain नहीं करूँगा, but I am just going to write its name. That is called skeletal formula. किसी ने नाम सुना है पहले? Skeletal formula? No, sir. Okay. All right. This skeletal formula will come in the A levels. अभी जो आपने पढ़ने हैं वो है जनरल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, डिस्प्ले फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो क्वेश्चन आपसे रिक्वायर जब करेगा जिस तरह का फार्मूला पूछने का, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है. स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने बता दिया 2 तरह के एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला एक ही होगा, डिस्प्ले फार्मूला उसका एक ही होगा. और इन दोनों में भी कुछ चीज कॉमन है बिटवीन दी displayed formula and structural formula. वो क्या चीज कॉमन है इन दोनों फॉर्मूलाज में? Everything is the same, just the bonds aren't showed. Everything is the same. Sorry. Sir, sequence is same. Exactly. The sequence is the same. Sequence should not be changed. ये चीज कॉमन होगी दोनों में. Very good. Okay, now coming back to the topic where we left. ये जो molecule बना हुआ है, that is the electron dot and cross structure of the ethene. आपने ये केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में ये स्टडी किया था, तो आपको इथीन की भी एग्जांपल दी जा सकती है और इसके अलावा प्रोपीन की भी एग्जांपल दी जा सकती है. यू विल नीड टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द प्रोपीन. बट प्रोपीन से ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा. मैक्सिमम प्रोपीन तक जाएंगे. तो प्रोपीन का इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने जो है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना होगा. Okay. Then सर yes. सर आप कह रहे कि प्रोटीन से ऊपर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा?
नहीं, स्ट्रक्चर ड्रा करने का मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, अच्छा दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर ड्रा करने का कहा जाएगा, प्रोपेन से ऊपर नहीं आएगा। सही से। Okay. So the presence of the carbon-carbon double bond in an alkene molecule makes alkenes much more reactive than the alkenes. Alkenes contain only carbon-carbon single bonds. Other atoms can add on to the alkene molecules when the double bond breaks open. The alkenes are unsaturated hydrocarbons. So basically, हमारे पास एल्कीन्स के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्केन्स, क्योंकि एल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और चूंकि इन दोनों के पहले से फर्दर दो दो बॉन्ड्स बने हुए थे इस तरह के, तो मैं इसका एक डबल बॉन्ड जो है इसका कलर चेंज करता हूँ, वो जो इसका जो डबल बॉन्ड था एक जो ब्रेक करेगा वो बेसिकली अब दोनों कार्बन एटम्स के साइड पे लग जाएगा, क्योंकि पहले ये आपस में डबली बॉन्डेड थे, तो जब ये डबल से सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो वो ब्रेक करके इसके साइड वाले कार्बन एटम्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कोई भी आके एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन पे अटैक कर सकता है और वो आके इन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है, और ये चीज सिंग जो है ऑलरेडी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं है, उसमें एडिशन नहीं हो सकती। एडिशन होती है व्हेन न्यू मॉलिक्यूल और एटम कैन ऐड इनटू द प्रीवियस मॉलिक्यूल, इसमें ऐड हो जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो इसमें एक्स कोई एक हैलोजन मॉलिक्यूल है, वो मैंने इसमें अटैक कराऊंगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक एक्स यहाँ लग जाएगा, एक एक्स यहाँ पे लग जाएगा। तो एल्कीन के ऊपर ये काम हो सकता है, एल्केन पे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि एल्केन में तो पहले से ही जो थे वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सारे मौजूद थे, तो इसलिए वहां पे एडिशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती। ये भी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो आगे स्टडी करेंगे इन डिटेल, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर किया। दिस डिफरेंस This difference is a basis for the simple test for unsaturation in the hydrocarbon molecule. तो सिंपल टेस्ट यहाँ पे बात हो रही है दी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कि आप किसी केमिकल रिएक्शन से ये प्रूफ करें कि आपके पास जो कंपाउंड है दैट इज एन एल्कीन नॉट एल्केन, उसको कहा जा रहा है टेस्ट यहाँ पे, कि कौन सा टेस्ट किया जाए जिससे आप उसकी आइडेंटिटी को चेक कर रहे हैं। आपने अल्केन्स और एल्कीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है, अब थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो है अल्काइन। The alkynes are a third family of hydrocarbons. The alkynes are also unsaturated hydrocarbons as the molecules contain a carbon-carbon triple bond. इसमें क्या होगा, carbon-carbon triple bond, and the simplest member is ethyne, C2H2. इसमें important point क्या है, we do not study the alkynes any further at this level. तो इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन बता दी गई है बस इधर तक ही लिमिटेड है अबाउट दी अल्काइंस। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि वी हैव द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड द सिंपलेस्ट मेंबर हैव दिस फॉर्मूला जिसका नाम है इथाइन। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, द डिस्प्ले स्ट्रक्चर, तो कैसा होगा, कोई मुझे बताए, मैं भी बना नहीं रहा। ईशान, वुड यू लाइक टू dictate me the structure of the C2H2 considering all this information mentioned here? There will be 2 carbons and 1 hydrogen on each carbon. 2 carbon and 1 With- hydrogen on each carbon With triple bond. with triple bond between Carbon and carbon. carbon and carbon. Okay, Tayyib, is that a right structure? Yes, sir. And Abdullah Yusufzai?
सर कंफ्यूज्ड हूँ सर, समझ नहीं आ रही, आप बताएंगे तो फिर। And Muhammad Abdullah, what's your answer? Yes, sir, it's correct. Oh yes, this is a right structure. यहाँ पे उसने खुद एक्सप्लेन किया था, ईशान वेरी गुड। इसमें इसने खुद एक्सप्लेन किया था that we have the कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जो कि आपने यहाँ पे शो कर दिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसने खुद ही बता दिया था कि इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल भी जो है वो है इथाइन, जिसमें 2 हाइड्रोजन है। तो चेक कर लें, कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो यहीं पे कंप्लीट हो गए ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। पीछे दोनों कार्बन की जस्ट 1 मोर वैलेंसी रह गई थी, और वो वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट करेगा? विद दी हाइड्रोजन एटम। ये 2 हाइड्रोजन एटम जो दोनों कार्बन के ऊपर सेपरेटली लगेंगे, एक उसके पर लग गया और एक इसके पर लग गया। अगर मैं एक इसका रॉन्ग स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मुझे आंसर करें हुसैन अब्बास, जी सर। ये रॉन्ग स्ट्रक्चर क्यों रॉन्ग होगा? सर क्योंकि दोनों कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आना चाहिए। वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन ये रॉन्ग क्यों है? मतलब ऐसे कौन सा रूल वायोलेट हो रहा है यहाँ पे? सर इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट भी चाहिए मुझे। वेरी गुड जी Hydrogen तैयब। with Sir, the hydrogen cannot be bonded with cannot have two bonds. यस एग्जैक्टली, अब्दुल्ला, वहीद एंड तैयब बोथ आर करेक्ट। कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन विल मेक 1 बॉन्ड। इसलिए दोनों जगह से आपको वायोलेशन मिल रही है। इन दोनों कार्बन में से कौन सा रॉन्ग कार्बन शो हो रहा है? लेफ्ट वाला सर। यस, लेफ्ट वाला कार्बन। लेफ्ट वाला कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स। और यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन रॉन्ग हो रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला? the one on the left. सॉरी, राइट वाला सर। The one on the left is wrong. मोहम्मद अब्दुल्ला, योर वॉइस इज टू फेंट। Which hydrogen is violating the rule? The one on the left. The one on the left. Abdullah Yusufzai, the one on the left, not the right. Left wala. क्योंकि this one is making 2 bonds, one with the right side, one with the left side. So that side it is violating the rule. Is that clear? Yes, sir. यस सर। सर एक सवाल है सर, स्कूल में जो Yes. हमने किए हैं तो सर वो तो कम से कम 4 कार्बन से शुरू होते हैं और 3 उनके साथ फिर हाइड्रोजन होते हैं हर कार्बन के साथ। Alkynes में? एल्कीन और एल्केन में। Alkene और alkane में 4 कार्बन एटम्स का क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ सर आपने इधर 2 कार्बन बनाए सर, वो हमने मतलब सर कह रहे थे कि सिर्फ 4 कार्बन से ही शुरू होता है मिनिमम। Alkyne? एल्काइन नहीं सर, एल्कीन और एल्केन। सर एल्काइन तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। नहीं, उसमें भी यही मेंशन किया था कि उससे ज्यादा आपके सिलेबस में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। ओके, अब जो हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, वी हैव दी methane, ethane, and then we have the alkenes including butane, butene. Okay, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है अप टू 4 कार्बन एटम। देखें, हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कहाँ तक लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे वर्ड देखें, ब्यूट है, यहाँ पर भी, इधर भी ब्यूट है, ये भी ब्यूट है, ये भी ब्यूट है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी हमारे पास अप टू 4 कार्बन एटम्स इधर भी मेंशन किया हुआ है, ये भी मेंशन किया हुआ है, विच मींस अप टू द 4 कार्बन एटम्स। स्टार्टिंग 4 कार्बन एटम्स नहीं है, अप टू द 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है? सही सर। यस, ये है लर्निंग आउटकम्स विच यू हैव टू फॉलो। तो अल्काइंस में हम ज्यादा फर्दर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद भी ये कह दिया कि इस लेवल से ज्यादा हम इसकी इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। बस हमने ये बता दिया कि अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है, और उसकी पहचान क्या है, उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और सिंपलेस्ट मेंबर जो था वो ये है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
और इसके definitely simplest member है, which means we can increase the number of carbon atoms for the alkynes as well, not just for alkene but for the alkynes as well. हम इसमें जितने मर्जी carbon atom attach कर सकते हैं, but that is not included in our syllabus, in our specification. The next topic is about the homologous series of the organic compounds. Homologous series are basically, these are the family of the organic compounds which have the similar chemical properties. एक ही फैमिली के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे. अब केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती हैं, वो ये थी जो हमने एग्जांपल पढ़ ली है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. वैसे हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी कह सकते हैं. हमने कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो एल्कीन्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन एल्केन. तो ये रिएक्टिव का जो हमने वर्ड यूज किया, बेसिकली स्पेसिफाइंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. More reactive means it is chemically more reactive. So all the properties, chemical properties, are basically linked with their functional groups. आगे भी word आएगा functional groups. This is the functional group here. अगर मैं कार्बन चेन इंक्रीज करता हूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करता हूं, then this is a functional group here. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इसी तरह से भी अल्कोहल की जो हमने यहाँ पे टेबल में बात बोली थी, जब हम इसके सफिक्स रीड स्टडी कर रहे थे, तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं साथ में, ना सिर्फ होमोलोगस सीरीज है बल्कि ये फंक्शनल ग्रुप हैं, और इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो भी हमने आगे गो थ्रू भी करने हैं. तो होमोलोगस सीरीज हम ये कहेंगे कि एक ही फैमिली के ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप्स. और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव्स द सीरीज इज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. तो ऐसा एक एटम हो या कि ग्रुप ऑफ एटम्स हो जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज उसको प्रोवाइड कर रहा हो, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे हमारे Sir, पास यस sir, I didn't understand functional group. Can you repeat again? I have not yet completed the functional group. Functional group is an atom or it can be a group of atoms which will give the compounds its unique chemical properties. कोई एक एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी अपनी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करे, असिस्ट करे, दे, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप. इस काम के लिए पहले आप इस टेबल को जरा गो थ्रू करें. तो ये द फंक्शनल ग्रुप्स का ये कॉलम लिखा हुआ है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप कॉलम. अगर आपको नजर ना आ रहा हो, ये फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है. इसमें अल्कीन्स के और अल्केन्स के सामने देखें क्या बना हुआ है. अल्केन्स हैव दिस फंक्शनल ग्रुप. वैसे कुछ लिटरेचर में इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, बट इधर इसको शो किया हुआ है. और अल्कीन्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. मैं इसको फर्दर जूम करता हूँ. अल्कीन्स के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है. अल्कोहल्स के लिए OH. OH is a functional group of the alcohol. OH. This is a group of atoms. क्योंकि दो एटम है इसमें, इसको हम ग्रुप ऑफ एटम्स कहेंगे. तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से उसको अपनी एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज उसको असाइन की जाती हैं, उसको मिलती हैं. और नीचे एक और है कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी ग्रुप ऑफ एटम्स है. उसमें एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है. और उसका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है. Carbon is bonded through double covalent bond with the oxygen, and carbon is bonded through single bond with the oxygen and through single bond with the hydrogen. मैं इसका स्ट्रक्चर सेपरेटली बना देता हूँ. Carbon bonded through double bond with the oxygen, with a single bond with the oxygen, and oxygen is bonded through single bond with the hydrogen. This is the functional group of the carboxylic acid. जबकि एल्कीन का बता दिया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कोहल के लिए जो है वो OH है. Is this now clear, Tayyib and other students? Yes, sir. Any question from here?
All right. So functional groups are such atoms or group of atoms which give the compounds their unique properties. That's for this reason the carbon-carbon double bond is known as the functional group of the alkenes. Two other homologous series are the alcohols and the carboxylic acid, जिसके हमने यहाँ पे बात कर लिया. The functional group of alcohols is the hydroxyl group. OH को हम इसका अपना भी एक पर्टिकुलर नेम है. वो नेम क्या है? Hydroxyl group. Hydroxyl group is the name of this OH. आपने वैसे यही चीज पढ़ी होगी इन दी एसिड बेस चैप्टर. याद है किसी को? OH को हमने एसिड बेस में भी पढ़ा था कहीं पर. अगर किसी को याद है वो आंसर Yes, दे sir. सकता है कि वहां पे OH का क्या मतलब था. OH means hydroxides. Yes, and hydroxide has what to do with the acid base? It determines, it is like the H positive concentration, which determines if a substance is acidic or alkaline. Okay, yeah, you are correct to some extent. सर ये The सॉल्ट के साथ बनता है ना, जब रिएक्शन होता है एक सॉल्ट बनता है एक ये बनता है. अच्छा, ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही. OH is present in alkalis. When a base is added into the water, it produces alkalis और alkalis में हमारे पास OH ग्रुप था. उस टाइम पे इसका नाम था हाइड्रोक्साइड. और हाइड्रोक्साइड will not occur singly, मतलब अकेले हम नहीं इसको लिख सकते. It must be present with any positive part. और पॉजिटिव पार्ट वहां पे कोई मेटल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. तो सोडियम के साथ OH होगा तो NaOH. अगर कैल्शियम के साथ है तो CaOH whole twice. Magnesium, potassium. So all these will give you the alkalis. These are the identities of alkalis. Those compounds, those bases which can be dissolved in water. Anyways, वो उस चैप्टर की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने थोड़ी सी आपसे पूछ ली है इस पॉइंट पे. यहाँ पे OH ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होगा अल्कोहलिक पार्ट. अल्कोहल या अल्कोहलिक पार्ट और हाइड्रोक्सिल. नाम इस ग्रुप का है हाइड्रोक्सिल एंड इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल. नाम फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल है और ये किसको आइडेंटिफाई करता है? अल्कोहल्स को. इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं. एंड दैट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज द कार्बोक्सिल ग्रुप. ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप. और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है. इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने लिखना है इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला COOH. सीक्वेंस वही है. कार्बन बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड द ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन. आप इसको इसी तरह ही अरेंज इसी सीक्वेंस में लिखना. नेवर राइट लाइक दिस HCO SCOO. that will become wrong. ये सीक्वेंस नहीं यूज कर सकते फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. द सीक्वेंस शुड फॉलो दिस वन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना हुआ है. दिस विल बी रॉन्ग. इसके अलावा ये भी रॉन्ग होगा इफ यू राइट लाइक दिस HOCO. these are indirect these are wrong ways to show this carboxylic group. It's clear to everyone? Yes, sir. Okay. So I have discussed the okay. One more thing. We have the general formula for the different functional groups. Alkene का हमने already discuss कर लिया हुआ है. CnH2n plus 2 for the alkane. CnH2n for alkenes. Alcohols के लिए क्या है? CnH2n plus 1 and OH. This is for alcohols. And for carboxylic acid, we have CnH2n plus 1 with carboxylic group. So that's the general formulas of these functional groups. और उसके बाद फिर हमने ये भी टेबल देख लिया. अच्छा, इसमें राइट साइड पे ये जो चीज मेंशन की गई है ये बेसिकली आइसोमर्स को शो किया जा रहा है. आइसोमर्स.
आइसोमर्स का टॉपिक मैं आपको सेपरेटली करवाऊंगा, अभी हमने सिर्फ लेफ्ट को देखना है, आइसोमर्स का मैं बाद में कराऊंगा। यस सैयद, आपने हैंड रेस किया था। Sir, are you going to send these notes in folder, यस drive एग्जैक्टली, आई विल folder? सेंड दीस नोट्स इन ड्राइव फोल्डर, Oh, sir, when? perhaps tonight or by tomorrow. Okay, okay. Okay. So homologous series जो हमने देखा था, the members of the same organic family having similar functional group, उनमें और क्या क्या चीज सेम है? They have same functional groups जो हमने देख लिया। मतलब कहने का ये है कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, these are the homologous series। इन सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप है और ये एक ही फैमिली के कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा इनमें और क्या चीज कॉमन है? वी हैव दी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बेस किस पर करती है? फंक्शन ग्रुप पे। सब के सब एक ही फंक्शन ग्रुप के साथ है। इसके अलावा each member of the series differs from the next by an additional CH2 unit। CH2 यूनिट के साथ इन दोनों में डिफरेंस होगा। इसके लिए मैं आपको एल्कीन के कंपाउंड्स दिखाता हूं जिसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। ये 3 मेंबर्स हैं सीक्वेंस में, 2 कार्बन एटम वाला, 3 कार्बन एटम वाला एंड 4 कार्बन एटम वाला। अब आप इसको डिफरेंस चेक करें। जब हम इथीन से प्रोपीन में जा रहे हैं तो एडिशनली आपको इसमें क्या चीज और मिलेगी? एक कार्बन एटम ज्यादा हो रहा है। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? वी हैव C2H4, और इसमें कितना होगा? C3H6। तो डिफरेंस इन दोनों में कितना है? CH2 का। इज दैट सो? यही डिफरेंस नजर आ रहा है। और अगर हम प्रोपीन से ब्यूटीन जाएं, Sir, can ब्यूटीन का you फॉर्मूला repeat? मैं ये बता रहा हूँ कि आप इथीन से प्रोपीन को डिफरेंस चेक करें। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6। तो इन दोनों में जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है नंबर ऑफ एटम्स का, वो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 2। तो CH2 यूनिट का जो है डिफरेंस है in between these two members। Is that clear? Yes, sir. और अगर आप प्रोपीन को ब्यूटीन से कंपेयर करें, ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। C4H8, अब दोनों को चेक करें, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी आप चेक कर सकती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें। CH2 का डिफरेंस आ रहा है इन बिटवीन दीज टू फॉर्मूला CH2 का, और आप स्ट्रक्चर में भी दे सकते हैं। There is now CH2 present here in butane which is not present in that propene। तो एडिशनल एक और कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो उसमें ऐड हो गए हैं। So that's how you can basically differentiate between these molecules। Is that clear? So we'll continue from here in our next class, inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz everyone.